जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी। दिस सब्जेक्ट इज स्पेशली फोकसेस फॉर BMRIT and MLT students. It is not of a MBBS level. It is of the basics. It's especially related to the BMRIT and MLT student. I prepared this lecture focusing for those paramedical students only. So let's get started from here. Okay. तो किसी सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें उसके बेसिक्स को समझना जरूरी है। देयर आर सम बेसिक्स एनाटॉमिकल टर्म्स जो कि हमको पहले पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, जिसके बाद हम इन फ्यूचर लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द होल एनाटॉमी। So let's get started from the basic, some basic things that comes in the human anatomy. Okay, so there are three kinds of planes that we study in the human anatomy. One is coronal plane, number one is sagittal plane, number two is coronal plane, number three is transverse plane. Okay, so this is our body. This is a 3D structure of our body. So there are some planes that divides body into different angles and in different forms. Okay, so the number one is sagittal plane. And what is sagittal plane? Sagittal plane is a vertical line which divides the body into right and left section. So you are watching this. You are watching the plane. This plane. This plane is sagittal plane. Okay. What this plane is doing? This plane is dividing the body into right and left portion. Okay. Number second is our coronal plane. What is coronal plane? That divides the body into anterior and posterior part. So this is the coronal plane that divides the body into anterior and posterior section. Okay. And the third is the transverse plane. What is transverse plane? A horizontal line which divides the body into upper section and lower section. So there are three kinds of planes in the human anatomy that we study that divide the body into different sections. Okay. Next is some anatomical movements. We have to study some anatomical movements. So number one is flexion and extension. So what is flexion and extension? Flexion and extension is especially the movement of joints. Okay. So joints, what kind of joint? Suppose this is our elbow joint. Okay. So the movement is like this. So when the hand is flexing toward the body, that is flexion. And when the hand is going outside from the body, then this is extension. When the hand is extending, that is extension. When the hand is flexing, that is flexion. Okay. So this movement, when the hand is extending straight, then it is extension, and when the hand is flexing, that is flexion. Okay. Flexion refers to the movement that decreases the angle between the two body parts. So the main content is angle between the two body parts is flexion, and when the angle between the two body part increases, then this is extension. Okay, ध्यान रखना इस चीज को. When there is a decrease in the angle of the between the two body part, that is flexion, and when there is an increase in the angle between the two body part, then this is extension. Next is a movement of the whole extremity, the total one extremity, that is abduction and adduction. Okay, तो नाम से ही हम समझ सकते हैं abduction and adduction को. Adduction is something adding. Okay, something adding. इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि adduction कैसे समझना है और abduction कैसे समझना है. Adduction is something like adding. So when the movement of the body is like this, you are seeing this. These are the hand. When the hand is coming toward the body, the hand is adding toward the body. This movement toward downward of the downward movement of the hand toward the body, coming toward the body, is adduction. And when the hand is going away from the body, then this movement is known as abduction movement. Okay, when the leg, suppose this is the leg, when it is going outward from the midline. Suppose this is the midline. Okay, this is the sagittal plane that divides the body into right and left portion. So if the leg is going away from the midline, then this is abduction. And when the leg is coming toward the midline, then this is adduction. Clear? Abduction is a movement away from the midline. When the
when the leg is going away from the midline, when the hand is going away from the midline, this is adduction. Okay, abduction. When the extremity or when the movement is toward the midline, then this is adduction because something is adding toward the body. Okay. Next is the medial and lateral rotation. Okay. So medial and lateral rotation को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि we see the movement. See the movement here. Rotation is on the axis. हमने साइंस में कई बार रोटेशन पढ़ा है, रेवोल्यूशन पढ़ा है, आपको वही पढ़ा हुआ है अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। जब अपनी ही एक्सिस में कोई चीज घूमती है दैट इज रोटेशन, एंड व्हेन द समथिंग इज रिवॉल्विंग समथिंग अराउंड सम अनदर बॉडी दैट इज रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्विंग समथिंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट अर्थ इज आल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो एक्सिस फिक्स होगा and the other thing is rotate, which is rotate करे। So see here, this is the heel, पाँव की heel है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर heel fix है, the movement is towards outward and toward inward, okay। When the movement is toward inward, this is medial rotation because the rotation is toward the midline, यहाँ पर हमारी midline है बीच में, okay। So the rotation is toward midline, this is medial rotation, and the when the rotation is toward outward from the midline, this is lateral rotation. So clear? The medial rotation is the rotation movements towards the midline. It sometimes refers to the internal rotation because it is the part is going internal toward the midline. Okay, when the part is going internal toward the midline, it is also known as internal rotation or medial rotation. When the part is going outward from the midline, then this is lateral rotation. The lateral rotation is a rotating movement away from the midline. This is the opposite direction to the medial rotation. Clear? Now next is there are two types of flexion. अभी हमने flexion extension पढ़े, तो उनके दो types हैं. That is dorsiflexion and plantar flexion. Okay, so the dorsiflexion and plantar flexion especially you can see in ankle joint. Okay, it is mostly common you see in ankle joint because ankle हमारा कैसे move कर सकता है? Extend भी हो सकता है, flex भी हो सकता है। ओके, तो दिस मूवमेंट आपको कंप्लीटली फ्लेक्स भी नहीं हो पाता है, कंप्लीटली हमारा जो हमारा एंगुलर प्रोग्रेस सीधा भी नहीं हो पाता, बट अगर हम उसको इस पोजीशन में देखें तो वी कैन फ्लेक्स इट लाइक दिस। ओके, तो कंप्लीटली फ्लेक्स भी नहीं हो रहा, तो इट इज क्या प्लांटर फ्लेक्शन है, मतलब फ्लेक्शन के अंदर अंदर है, ठीक है। तो कंप्लीटली 180 डिग्री तो नहीं बन रहा ना, जिस हमारा एल्बो है इज गोइंग 180 डिग्री, दिस इज एक्सटेंशन। ओके, बट व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड द बॉडी दिस फ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो एंगल है वो कंप्लीटली ऐसे सीधा नहीं हो पाता है, it is like this, so it is come under the flexion, the types of flexion। okay, तो flexion दो तरीके के हैं, dorsiflexion, इसलिए dorsiflexion और plantar flexion स्पेशली देखा जाता है जिसमें ankle joint में। okay, तो dorsiflexion क्या है? dorsiflexion when the ankle moves toward the head, मतलब जैसे ऐसे सामने रहेगा ankle हमारा, when the you can see here when the ankle is moving toward the head, this is dorsiflexion, and when the ankle moving toward the away from the head, this is plantar flexion। clear? When the ankle or when the toe is coming toward the head, ऊपर की तरफ आ रहा है, this is dorsiflexion। when नीचे की तरफ जा रहा है toe हमारा, तो that is plantar flexion। okay, dorsiflexion refers to the flexion at the ankle so that the foot points more superiorly, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। dorsiflexion of the hand is a confusing thing, that's why मैंने आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी कि dorsiflexion and plantar flexion is especially seen in the ankle joint। okay, so कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। plantar flexion is refers to the extension of at the ankle so that the foot point inferiorly, मतलब जब फुट हमारा inferior की तरफ, नीचे की तरफ फेस कर रहा है, that is plantar flexion। ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, that is dorsiflexion। clear? some other movements are elevation and depression। so elevation is the refers to the movement in a superior direction, okay, like this, ठीक है। and depression refers to the movement in inferior direction। okay, these terms also apply in the whole body when you lying flat। okay, जब बैक के पीठ के बल लेटे रहोगे सुपाइन पोजीशन में, ओके, दैट इज सुपाइन पोजीशन, एंड जब आप पेट के बल लेटे होगे दैट इज अवर योर प्रोन पोजीशन। तो ये भी
समझना जरूरी है कि बॉडी सुपाइन कब है, किस पोजीशन को सुपाइन बोलते हैं, किस किस पोजीशन को हम प्रोन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हैंड को देखो, हैंड का जो सुपाइन पोजीशन है वही वाला है, ये हाथ खुल गया, जब ये पीछे की तरफ हमें बैक पोर्शन दिखा रहा है, जैसे जब प्रोन प्रोन पोजीशन होता है हैंड, अपना हैंड को प्रोन कर रहा हूँ, ये हमारा सुपाइन पोजीशन ऑफ द हैंड है। प्रोन पोजीशन इज लाइक दिस इज द प्रोन पोजीशन ऑफ द हैंड, ओके। तो जब हम पीठ के बल लेटे रहते हैं दैट इज आवर सुपाइन पोजीशन, जब हम पेट के बल लेटे हैं दैट इज आवर प्रोन पोजीशन, ठीक है। याद रखना प्रोन पेट, अगर याद नहीं होता ये टर्म तो आप उसको ऐसे ऐसे रट्टा मार सकते हो कि प्रोन को पेट से वो करते हैं कि पेट के बल लेटे हैं तो प्रोन पोजीशन है, सुपाइन इज लाइक स्पाइन पे हम लेटे हुए हैं तो दैट इज सुपाइन पोजीशन, ठीक है। एलिवेशन रेफर्स टू द मूवमेंट इन सुपीरियर डायरेक्शन, ठीक है। शोल्डर का जो शब्द होता है दिस इज एलिवेशन, ठीक है। दिस इज एलिवेशन, दिस इज डिप्रेशन, ठीक है। आप अपने शोल्डर्स को उठा रहे हो जैसे एलिवेशन, झुका रहे हो दिस इज इंफीरियर डायरेक्शन, दिस इज डिप्रेशन ऑफ द शोल्डर, ओके। अगेन कीपिंग द एल्बो एंड द शोल्डर स्टिल, ठीक है। एल्बो एंड शोल्डर को स्टिल रखो, फ्लिप योर हैंड ऑन टू योर फ्रंट palm down, prone position, and the known as pronation, and this is supination, okay। मैंने दोनों आपको बता दिया है पहले। So this is supine जब हम स्पाइन के बेसिस पे लेटे हुए हैं, and this is prone when हम पेट के पे लेटे हुए हैं, okay। So the next movement is another movement are inversion and eversion, okay। So eversion and inversion is especially seen in the ankle joint region, okay। It refers to the movement of the foot around the long axis, ठीक है। appear movement that is limited to the humans, से सिर्फ humans में देखी जाती है, ये apes के अंदर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब कौन सी है दिस इन्वर्जन इज, जब हम आपको याद होगा जब हम पेपर कहीं खेलने जाते हो, वहाँ पर अपने पे बैठे रहते हो, यू कैन मूव यूर फुट लाइक दिस, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, मतलब ये आपका सिर्फ एंकल फिक्स रहेगा एंड यू अपने पाँव को यूं करके, मतलब जो आपने पूरा अपना पाँव नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रखा है, यू आर मूविंग लाइक दिस। इन्वर्जन मतलब इन टुवर्ड द मिड लाइन, इवर्जन इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ओके। तो इन्वर्जन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सोल, सोल मतलब हील की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ द हील टुवर्ड द मीडियल प्लेन, ओके। सो दैट द सोल फेसेस इन द मीडियल डायरेक्शन, जो हमारा सोल नीचे वाला ये हमारा मीडियल डायरेक्शन की तरफ फेस करे, ठीक है। एंड व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन दैट इज इवर्जन, क्लियर। इवर्जन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सोल अवे फ्रॉम द मिड लाइन प्लेन, मीडियल प्लेन, ओके। देन नेक्स्ट इज अपोजिशन एंड पोजिशन। सो अपोजिशन एंड पोजिशन स्पेशली ह्यूमंस में देखने को मिलता है, मैंने अभी आपको बोला कि इट इज स्पेशली सीन इन द ह्यूमंस, okay। there are some movement that is especially seen in human and apes, बाकियों में मतलब बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें भले उनके जो उसमें देखने को नहीं मिलता है। व्हाट इज दैट, दिस अंगूठे का जो मूवमेंट होता है ना फ्रॉम दिस, ये हमारी जो लिटिल फिंगर तक पहुंच जाता है, यू कैन वॉच हमारा जो ये हमारा जो थंब है इट इज मूविंग टुवर्ड द दिस फिंगर, ठीक है। अपोजिशन डिपोजिशन, दिस दिस दिस, ठीक है। दिस मूवमेंट इज स्पेशली सीन इन द humans and apes, ठीक है, like this। You can touch your finger, your pen, you can say the pen finger from your thumb, okay। So position is bringing the thumb toward the little finger, ठीक है। little finger के तो वर्ड लिखा है ना, this is opposition। Reposition is when you are going away from the each other, ठीक है। Reposition is this, मतलब अपनी पोजीशन में वापस आ जाना, reposition, समझो इसको। रिपोजिशन मतलब अपनी पोजीशन में वापस आ जाना, रिपोजिशन। एंड अपोजिशन इज कमिंग व्हेन द थंब एंड द लिटिल फिंगर कम टू टच ईच अदर, ठीक है, दैट इज अपोजिशन। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट इज सर्कमडक्शन, ठीक है। तो सर्कमडक्शन इज लाइक आपने कई बार आप पीटी कर रहे हो, पीटी करते हुए आपने देखा होगा आप अपने शोल्डर फिंगर घुमाते हो, अपने हैंड को एक्सटेंड करके घुमाते हो, ठीक है। दिस इज द सर्कमडक्शन, मतलब आपका जो हैंड है वो घूम रहा है, यू कैन सर्कम इज लाइक सर्कल, कोई सर्कल बन रहा है, ठीक है। बट द मूवमेंट कैसा है, मूवमेंट एक कोनिकल फॉर्म है, ठीक है। व्हेन यू सी हियर दिस इज अ कोनिकल फॉर्म ऑफ योर हैंड, इट इज फॉर्मिंग अ कोन, ठीक है। कोन कैसा होता है, यू कैन सी, यू कैन कोन देखा होगा ना, मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन पढ़ा हुआ कोन। तो द सर्कमडक्शन इज द कोनिकल मूवमेंट ऑफ द लिम्ब, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जॉइंट एट विच द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड। सो दिस मूवमेंट, तो देखो ये एक कोनिकल मूवमेंट है, यहाँ से देखो ये हमारा टॉप एक्सिस हो गया और यहाँ पर हमारा सर्कल बन रहा है,
ठीक है, तो इज फॉर्मिंग अ कोन, ठीक है, तो दिस इज द सर्कमडक्शन ऑफ हैंड इज लाइक दिस, ओके, अपर लिम्ब, ओके. It sometimes talk about the circular motion, but it is more accurately conical due to the cone form by the moving limb, ठीक है, cone form होता है. Next is protraction and retraction, ठीक है. It is especially in the scapula, हमारी scapula होती है ना पीछे, जो हमारा अपर शोल्डर गर्डल होता है, पीछे स्कैपुला हमारा पूरा एक जॉइंट बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है, ठीक है. उसमें स्पेशली रीजन होता है कि हमारी स्कैपुला हम पीछे ही खींच सकते हैं, आगे की तरफ रिट्रैक्ट कर सकते हैं. Protraction and retraction. So what is protraction? The anterior-lateral movement of the scapula. Okay, the anterior आगे की तरफ lateral movement of the scapula, and पीछे की तरफ is retraction. Retraction refers to the posterior medial rotation of the scapula on the thoracic wall. So there are some anatomical terms of location. इनको समझनी पड़ेंगी, ठीक है. इसको समझने के लिए मैंने अभी आपको बताया, जैसे हमने भी पढ़ा था पीछे लेक्चर में कि हम कैसे हमारे 3 प्लेन्स होते हैं. सैगेटल प्लेन क्या होता है, जो हमारी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में काटता है, तो दिस इज द सैगेटल प्लेन. इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल लाइन भी बोलते हैं, मिड लाइन भी बोलते हैं. भाई मिड लाइन बिकॉज इट इज डिवाइडेड द बॉडी इनटू 2 पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट, ओके. बट यहाँ पर हम जो दूसरी टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, ये भी आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, कि हम सुपीरियर कहाँ पर यूज करते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, और इंफीरियर पार्ट कहाँ पर यूज करते हैं, लेटरल पार्ट कहाँ पर यूज करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये भी समझना जरूरी है. सो जो नेक्स्ट एनाटॉमिकल टर्म्स हैं उसको समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, बाय अ मिड लाइन, ठीक है. अब मिड लाइन से हमने बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. सो जो पार्ट बॉडी की तरफ आ रहा है दैट इज मीडियल, जो पार्ट बॉडी से अभी जा रहा है दैट इज लेटरल, ओके. ये देख रहे हो ना, मिड लाइन से जो चीज अभी जा रही है दैट इज लेटरल, जो मिड लाइन की तरफ है दैट इज मीडियल, ओके. So medial means toward the midline, and lateral means away from the midline. The eyes, हमारी आंखें होती हैं, ठीक है. हमारी नोज, सपोज यहाँ पर हमारी नोज है, मिडलाइन है, ठीक है. तो हमारी आइज कैसी होती है, नोज के रेफरेंस में हमारी नोज होती है, उसके रेफरेंस में आइज कैसी है, लेटरल पार्ट है हमारी, ठीक है ना. नोज के रेफरेंस में लेटरल है, बिकॉज नोज कैसी मिडलाइन के उसमें रेफर करती है, नोज हमारी मिडलाइन पे होती है ना, तो नोज इज ऑन मिडलाइन, और जो हमारी आइज है वो लेटरल है, ठीक है. तो आइज इज लेटरल टू द नोज, ठीक है, क्योंकि हम नोज का रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो आईज आर लेटरल टू द नोज, ठीक है. हैंड्स आर लेटरल टू द चेस्ट, वो चेस्ट के लेटरल है ना हैंड्स हमारे, ठीक है. और नोज, अब हम आईज के अगर हम आईज को रेफरेंस मानते हैं तो नोज हमारी क्या थी, मीडियल है, तो नोज इज मीडियल टू द ईयर्स और आईज, ठीक है. कान यहाँ पर हमारे लेटरल है, अगर हम ऐसे पढ़े इसको कि जो हमारे कान है, ईयर्स आर लेटरल टू द नोज के लेटरल पार्ट पे है, ठीक है ना. और जो नाक है वो कैसी है, वो कान के मीडियल पार्ट पे है. द नोज इज मीडियल टू द ईयर्स, क्लियर, मीडियल लेटरल का पोर्शन. नेक्स्ट इज एंटीरियर पोस्टीरियर. एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने बता ही दिया, जो फ्रंट पार्ट है दैट इज एंटीरियर, जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर, ओके. एंटीरियर रेफर्स टू द फ्रंट एंड पोस्टीरियर रेफर्स टू द बैक. सो पेक्टोरियस मेजर लाइज, मतलब पेक्टोरियस मेजर इज द मसल ऑफ चेस्ट, ठीक है, मेजर मसल ऑफ द चेस्ट. It is lies on the anterior and pectoralis minor is lie to the, मतलब होता क्या है, मसल्स ओवरलैप होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है. तो जो हमारी पेक्टोरिस माइनर होती है वो नीचे की तरफ होती है, और पेक्टोरिस मेजर होती है ऊपर की तरफ होती है. तो हम उसके रेफरेंस में मान लो पेक्टोरिस माइनर के रेफरेंस में पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे पेक्टोरिस मेजर लाइज एंटीरियर टू द पेक्टोरिस माइनर, मतलब पेक्टोरिस माइनर के ऊपर की तरफ जो मसल है दैट इज पेक्टोरिस मेजर. तो उसको कैसे पढ़ेंगे, इट इज एंटीरियर टू द पेक्टोरियस major. Pectoralis major lies anterior to the pectoralis minor. Okay. Okay. So another term is superior and inferior. Okay. Superior and inferior समझने के लिए आपको देखो सिंपल सी बात है. The superior is ऊपर वाला पार्ट है. Superior. When you are going away, ऊपर की तरफ, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो that is superior part. जब नीचे की तरफ आ रहे हो that is our inferior part. ठीक है. सेम superior और inferior part को जब हम extremity में पढ़ते हैं ना, जब हम हैंड लिम्स में पढ़ते हैं, this term becomes proximal and distal. है वही मतलब, proximal मतलब क्या है, सुपीरियर पार्ट, और distal मतलब क्या है, इंफीरियर पार्ट. बट इसको हम किस में पढ़ रहे हैं, हम इसको लिम्स के उसमें रेफरेंस में पढ़ रहे हैं. होल बॉडी के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो दिस इज सुपीरियर एंड दिस इज इंफीरियर. बट हम लिम्स के रेफरेंस में पढ़ते हैं दिस इज प्रॉक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल. सेम इन द फुट आल्सो.
जब पूरी लेग को पढ़ते हैं तो लेग में ये नहीं बोलते सुपीरियर या इंफीरियर, लेग में भी हम क्या पढ़ते हैं, द प्रॉक्सिमल एंड, द डिस्टल एंड, जो नीचे वाला होगा डिस्टल एंड, द ऊपर वाला होगा प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओके, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। The terms proximal and distal are used in the structure that are considered to have a beginning and the end. So beginning of the hand is from this proximal end, and the end you have that is our distal end. Clear? So these are the some basic terms that you have to study to understand the human anatomy. Okay. So read all the terms. Okay. Learn all the terms. Then on the next lecture we will start our new chapter, that is our upper limb. Okay. If you like this video, then kindly like my video and subscribe my channel and share it my video with your friends and your colleagues, so that they can also can get the guide in studying the human anatomy. I again repeat that these lectures are especially for BMRIT and BMLT students. This is not for the reference for the MBBS lectures. Okay, thank you. Jai Hind.